Yeah, very good morning, students. In the last lecture, we have seen all the examples which are there in the practice set 2.2. Okay, only one example was remaining, and that is to represent root 5 and root 10 on a number line. Okay, now how you are going to represent these numbers on a number line? Why? Because these two numbers are irrational numbers. So to represent an irrational number on a number line, we took help of, always we take help of Pythagoras theorem. Okay, so let me tell you here 5 and 10. If you want to represent on a number line, first you have to represent them in the form of the addition of two numbers. ये जो 5 है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज अ एडिशन ऑफ दो नंबर्स का एडिशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स? यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रही हूँ. This you don't have to do. Okay, this is my rough work. Okay, this 5 root you don't consider now. This 5 can be written as 4 plus 1. Now you will say, why Miss has written specifically 4 plus 1? Why not 3 plus 2 or 2 plus 3? Okay, why? Because always whenever you are representing 5, 1 शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर. उन दोनों में से, दो नंबर्स में से एक नंबर 1 होना ज़रूरी है. ठीक है. सो दिस 5 कैन बी रिटन एज 4 है ना, सो इट इज़ 2 का स्क्वायर. ओके, एंड 1 इज़ अ 1 का स्क्वायर. सो मैं ये 5 को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. सो इट इज़ लाइक योर पाइथागोरस थ्योरम. ये तुम्हारा फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर is equals to your hypotenuse square. Okay, and suppose 10 I want to represent, then again I am telling you first दो numbers का as a addition इसको लिखना है. So दो numbers ऐसा भी हो सकते हैं 5 plus 5, 6 plus 4, but I am not taking them. I am taking specifically 9 plus 1. जैसे मैंने कहा एक नंबर 1 होना ज़रूरी है. ठीक है. So this can be written as 3 square. 9 मतलब 3 square and 1 मतलब 1 square. Okay, so बच्चों इसको करेंगे अभी फेयर में. So now I am doing my fair work. Here your solution starts. So now pay attention. Here your real solution starts. Consider that there is one triangle. Okay, so you are having one triangle. Now consider the name of the triangle. Okay, let's say it is A O B. This is your right angle triangle. Consider. Okay, so this is your perpendicular right angle triangle. It is. Now in this right angle triangle, students, this is always fixed, 1 unit. Okay, this is always fixed. It is going to be 1 unit, always fixed it is. So this is going to be served as your 1. Now this is 2. Okay, so now this, if I am going to apply Pythagoras theorem in this triangle, so in triangle AOB, angle AOB is equals to 90 degree. Okay, so therefore which theorem I can apply? I can apply Pythagoras theorem. By applying Pythagoras theorem, what I'll get? I'll get AB square is equals to AO square plus OB square. Okay, if I'll solve it further, what I'll get? AO is 1. Always the vertical length you have to consider as 1, and this you will take as this 2 square, that is 2. Okay, square you don't have to take 2, and here it is 2. So if I'll solve it,
आई एम गोइंग टू गेट 1 plus 4, that is 5. Now after this square I don't want, ये मुझे square नहीं चाहिए. What I'll do, I'll take a square root. So taking square root on both the sides or throughout. So हम लोग अभी क्या करते हैं, थ्रू आउट स्क्वायर रूट लेते हैं. स्क्वायर रूट लेने के बाद बच्चों ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी ए बी एंड 5 का स्क्वायर रूट विल बी रूट 5. सो देखो मेरे को रूट 5 ही रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, एंड हियर आई गॉट रूट 5 एज अ वैल्यू ऑफ ए बी. ओके, सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इन द नंबर लाइन. ओके, नंबर लाइन पे इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, जस्ट पे अटेंशन नाउ. ओके, so with the help of scale first you draw one line. okay, so यहाँ पे बच्चों मैं अभी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ with the help of scale. okay, ये लाइन पे बच्चों यहाँ पे कंसिडर कर लो ये 0 है. okay, origin. then as I have shown in the diagram, OB you have to take which is equals to 2 centimeter. So I will take the length of 2 centimeter here. So it is 2. Okay, and which point is this? This is your B point, right? So name it as B. This is your B point. Now after this what you will do? You don't have to proceed further. First what you will do here, you will draw length of 1 centimeter. ओके, 1 सेंटीमीटर का लेंथ जो है वो ड्रॉ करना है. सो ऑन बी ऑल्सो यू कैन ड्रॉ. बी के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओ के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं. एनीथिंग यू कैन डू. ओके, ओ के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर करो, बी के ऊपर भी करो, कहीं पे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो कंसिडर दैट यहाँ पे पहले तो एक परपेंडिकुलर निकालना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर. दिख रहा है ये, इसको सेट स्क्वायर बोला जाता है. ओके, ये सेट स्क्वायर जो है यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस प्रॉपरली. लाइन पे ऐसे इस तरीके से प्लेस करना है एंड यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन. इस तरीके से ऐसे एक रे ड्रॉ करना है. फिर ये रे के ऊपर हाउ मच सेंटीमीटर यू विल टेक, यू विल टेक 1 सेंटीमीटर. ओके, एंड इसको हम लोग नाम देंगे ए. देन विद द हेल्प ऑफ द स्केल, स्केल के हेल्प से बच्चों इसको हम लोग को ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज़ योर रूट 5. ये क्या है, रूट 5 है. दिखा ना ए बी डायग्राम में तुम्हारा जो भी है वो क्या है उसका वैल्यू, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, रूट 5 बन जाएगा. ओके, अभी ये जो है इतना मेजर लेना है एंड यू हैव टू ड्रॉ. देख लो इस तरीके से ऐसा आर्क ड्रॉ करना है. दिस इज़ योर पॉइंट वेयर रूट 5 विल कम. ओके, ये पॉइंट है जहाँ पे क्या आएगा, रूट 5 आएगा. सो दिस मैनर यू हैव ड्रॉन रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन. इस तरीके से हमने रूट 5 नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया. ये 2 सेंटीमीटर्स था, ये 1 सेंटीमीटर था और ये रूट 5 आएगा. ओके, ये मेरा रफ फिगर है. दिस इज़ माई फेयर फिगर. ये राइट होना ही चाहिए. सो यहाँ पे बच्चों मैंने अगेन आई विल टेल यू वन लाइन यू विल बी ड्राइंग. उस पर 0 लेना है, ओरिजिन ओ. देन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, बी पॉइंट देना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर. बट डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे. सबसे पहले ये सेट स्क्वायर है ना, इसको रख के हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और इसको जॉइन करना है. इसको जॉइन करोगे, ये दिख रहा है, इसको जॉइन करोगे तो ये है तुम्हारा और यहाँ पे रखना है राउंडर और फिर इस तरीके से आर्क ड्रॉ करना है.
ये जो पॉइंट दिख रहा है दैट विल बी √5 बिकॉज यही डिस्टेंस इतना यहाँ पे हमने लिया है. सो इन दिस मैनर यू हैव डन √5 ऑन अ नंबर लाइन. इस तरीके से हमने √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है. ओके अभी √5 को ड्रॉ करने के बाद में नाउ आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ √10 ऑन अ नंबर लाइन. ओके √10 को कैसे ड्रॉ करेंगे. तो बच्चों सेम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं √10 हम लोग, बट सेम नंबर लाइन पे मैं नहीं ड्रॉ करके बता रही हूँ, सेपरेट नंबर लाइन्स पे ड्रॉ करके बता रही हूँ. ओके तो बच्चों देखो अभी again I'm drawing one diagram here. Okay, in this diagram again I'm taking this as 1. Okay, and as I told you 10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो मतलब हमारे ट्रायंगल में ये 1 होगा, वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा 1 और जो दूसरा डिस्टेंस है वो 3 होएगा. सो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी 3. इस तरीके से करना है और इसको ज्वाइन कर देना है. ये मिलेगा तुम लोग को √10. ऑलवेज रिमेंबर. ओके सो इन दिस मैनर यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट. सो इस तरीके से दिमाग चलाना है. ओके सो चलो बता दूँ तुम लोग को इसका शॉर्टकट. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो आई हैव ड्रॉन वन लाइन हियर. ओके इस लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 लेंगे यहाँ पे. ओके 0 लेने के बाद में ये कितना लेंथ लेना है, दिस यू हैव टू टेक इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. सो आई हैव टेकन दिस और इसको कोई भी नाम दे दो, P मैंने दिया है. 3 यूनिट्स और 3 सेंटीमीटर इट इज़. देन हम लोग को विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर व्हाट वी विल डू, सेट स्क्वायर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, सेट स्क्वायर को प्रॉपरली प्लेस करना है जैसे मैंने किया है यहाँ पे. ठीक है सो यू विल प्लेस इट वेरी क्लियरली हियर एंड यू विल ड्रॉ वन रे. यहाँ पे ऐसा रे ड्रॉ किया मैंने जो 90 डिग्री बनाएगा. सेट स्क्वायर का यूज़ हम 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए करते हैं. नाउ ऑन दिस वर्टिकल लाइन आई विल टेक अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एज यूजुअल जैसे यहाँ पे लिया था. सेम वे आई विल टेक अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट हियर. ओके इसको नाम देंगे Q. ओके अभी इसको बच्चों ड्रॉ करते हैं एक डॉटेड लाइन. हाँ डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करनी है. Always remember this. You will be drawing a dotted line. So मैंने ये dotted line ड्रॉ किया. अभी मुझे इसको मेजर करना है like this. Okay and then what I will do, I will draw an arc. अभी ये जो आर्क है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. मैं चाहिए तो पेन से दिखाती हूँ. ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. This point is going to be your √10. ये पॉइंट क्या होने वाला है जो मैंने यहाँ पे n सर्कल किया है, that is going to be your √10 which you have represented on a number line. So √10 and here you have represented √5 on a number line. So बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से. So we have done with the practice set 2.2. Now let's start with the next practice test. But before that एक नया जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन होने वाला है and that topic is surds. Okay वो टॉपिक है surds. अब ये बच्चों सर्ड्स क्या होता है. अगर तुम्हें कोई भी नंबर दिखे, जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में इसको स्टडी किया है. ओके अगर कोई नंबर ऐसे दिखता है nth रूट, ये रूट है nth रूट ऑफ a. ओके एंड इसको हम अगर x अज्यूम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू है अगर x. सो इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी नंबर इन दिस फॉर्म वेयर मैं सब अभी स्पेसिफाई करती हूँ क्या क्या दिया है. n क्या है, n जो है ना, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. n क्या होना चाहिए, n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए.
ओके, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट n का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एनीथिंग इट कैन बी, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन रिक्वायर्ड। देन n जो है ना, इसको ऑर्डर बोला जाता है। n इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द सर्ड। n को क्या बोला जाता है? n को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ओके, उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है a। अब ये जो a है, a को क्या कहते हैं? तो a जो है ना, a इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। a क्या होना चाहिए? a पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव होना ज़रूरी है। रैशनल मतलब जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर का मतलब है p अपॉन q के फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और a जो है, a इज़ कॉल्ड एज रेडिकंड। क्या बोलते हैं a को? इसको बोला जाता है रेडिकंड। ओके, सो a इज़ कॉल्ड एज रेडिकंड and n is called as order of the surd. Now after this, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो सिंबल है, this symbol is known as radical symbol। known as radical। ओके, इस सिंबल को रेडिकल बोला जाता है। एंड और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ये जो x है ना, x इज़ एन इरैशनल नंबर। x क्या होना चाहिए? x इरैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, अभी तुम बोलोगे मिस इरैशनल नंबर मतलब क्या? तो इरैशनल का नंबर का मतलब होता है बच्चों, जो नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक तो वो स्टॉप नहीं होगा और दूसरा उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, x का वैल्यू ऐसे होगा, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √10, क्योंकि इनके वैल्यूज़ है ना बच्चों, कभी भी स्टॉप नहीं होते और वो कभी रिकर नहीं होते। रिकर मतलब रिपीट, 1.33 ऐसा नहीं होगा। कुछ भी एक और एक नंबर देती हूँ, तो जैसे 1.1391850 समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ओके, तो इस तरीके से x का आंसर होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड है तो हम इसको सर्ड कह सकते हैं। ओके, ये नंबर को सर्ड कभी बोला जाएगा जब n क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऐसा होना चाहिए। देन n जो है वो क्या होगा? n का तो मैंने बता दिया, उसको ऑर्डर ऑफ द सर्ड बोलते हैं। a जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब वो डेसिमल में हो सकता है पर वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, उसको रेडिकंड कहा जाता है। a को रेडिकंड कहते हैं और इस सिंबल को रेडिकल सिंबल कहा जाता है। x क्या है? x एक इरैशनल नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू इरैशनल आनी ज़रूरी है। इसका जो वैल्यू है इरैशनल आना ज़रूरी है। अगर वो इरैशनल है तो ही हम इसको सर्ड कह सकते हैं। सो बच्चों, ये सारे कंडीशंस है जो मैंने वेयर के बाद दिया है। दीज आर ऑल दी कंडीशंस ऑफ दी योर सर्ड होने के लिए कंडीशन है। अभी फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ किसको सर्ड कह सकते हैं। ओके, तो अगर मेरे को क्वेश्चन आया, सपोज क्वेश्चन इज कमिंग इन द एग्ज़ाम लाइक
cube root of 51, okay, is a surd or not. जस्टिफाई. अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन आए, सो व्हाट आई विल डू, अगर मुझे किसी ने पूछा कि क्या ये सर्ड है, अगर है तो जस्टिफाई करो, नहीं है तो भी जस्टिफाई करो. ओके, सो हाउ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई इट. सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहला कंडीशन n देखना है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1. तो देखो बच्चों, ये जो है ना, सबसे पहले तो इसको लोग तुम लेट x इज इक्वल्स टू, इसको x अज्यूम करना है, ठीक है, इसको इस तरीके से अज्यूम करना है. उसके बाद ये n है, ये a है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हियर n इज इक्वल्स टू 3. बराबर समझ में आ रहा है. इसको इसके साथ कंपेयर करो तो n इज इक्वल्स टू 3, ओके, विच इज पॉजिटिव इंटीजर. ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और ऊपर से वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर दैन 1 से बड़ा है. चलो, मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. इसका ऑर्डर जो है 3 है और 1 से बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड सर्ड होने का. ओके, तो उसके बाद मैं 51 देख रही हूँ. 51 है रेडिकंड, ए का वैल्यू है 51, विच इज़ अ रैशनल नंबर. ये एक रैशनल नंबर है. रैशनल मतलब कौन सा, इसको हम a अपॉन बी या p अपॉन क्यू, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब विच इज़ अ रैशनल नंबर. तो ये एक रैशनल नंबर है. ओके, सो इसका मतलब a और n का जो वैल्यू है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है. नाउ इसको अगर बच्चों सॉल्व करो, क्या तुम इसको सॉल्व कर पाओगे. 51 का क्यूब रूट कभी एग्जिस्ट करता है, 51 का क्यूब रूट नहीं एग्जिस्ट करता. मतलब ये जो नंबर है ना, इसका वैल्यू हमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मिलेगा, ठीक है. सो हियर आई विल से कि क्यूब रूट ऑफ 51 कौन सा नंबर है, सो इज़ एन इरेशनल नंबर. ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है. तो मैंने कहा था तुम लोग को कि x क्या होना ज़रूरी है, इरेशनल. तो देखो अपना x भी इरेशनल आ गया, मतलब मेरी जो तीसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है. इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 51 इज़ अ सर्ड. अगर हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए बच्चों, सो ये सर्ड है. समझ में आ गया. और उसका जस्टिफिकेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है. सो इन दिस मैनर यू कैन जस्टिफाई वेदर योर given number is a surd or not. Okay, in this lecture we will stop here. Thank you.